الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، آج یہ جو وہابیوں کا بہت بڑا مناظر بنا گھومتا ہے جس کا نام ہے رجا غیر مقلد، یہ وہابیوں کا بہت بڑا مناظر بنا گھومتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ اماموں پر اور عبارتوں پر بہت جم کر جھوٹ بولتا ہے۔ کیونکہ یہ اہل حدیث ہے، وہابی ہے، تو اب وہابی ہونے کے لیے تو یہ شرط ہے کہ جب تک وہ جھوٹ نہیں بولے گا تب تک وہ اہل حدیث وہابی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے یہ شرط بہت ضروری ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور مکاری کرے دین میں۔ اور الحمدللہ کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ جھوٹ نہیں بولتا دین میں، لیکن دین میں جھوٹ جب تک نہیں بولا جائے تب تک وہ وہابی اہل حدیث بن ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اپنے اصول کا پابند ہے، اسی لیے جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ یہ وہابی اور اہل حدیث ہے۔ تو اس نے کیا جھوٹ بولا؟ اس نے یہ جھوٹ بولا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے تو اس کے اوپر مجھے ایک دلیل دے دو۔ یعنی کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے۔ ان وہابیوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ رفع الیدین کرتے تھے، اس پر ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے جھوٹ بولتے ہوئے۔ تو ہم نے جب اس کو دلیل دی، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ شکست لکھ کر دوں گا، اور جب ہم نے اس کو دلیل دی تو اس نے شکست لکھ کر نہیں دی بلکہ فون کاٹ کر بھاگ گیا، کیونکہ یہی ان کی حقیقت ہے۔ ہر بار آتا ہے اور ذلیل ہو کر کے فون ہی کاٹ کر بھاگنا پڑتا ہے اس کو، کیونکہ وہابیوں میں اہل حدیثوں میں حق تو ہے ہی نہیں کہ جس کے ساتھ وہ بات کر سکے، تو لہٰذا ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ جب پھنس جاؤ تو فون کاٹ کر بھاگ جاؤ۔ یہی ان کی حقیقت ہے، یہی ان کی اوقات ہے، کیونکہ یہ دین میں جھوٹ بولتے ہیں دھڑلے سے اور بغیر شرمائے بغیر گھبرائے۔ تو آپ لوگوں سے میری یہ کہنا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ وہابی لوگوں کو جو ہمارے بھائی کم علم ہیں، یہ وہابی بہت کوشش سے بہکاتا ہے اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یہ وہابیوں کا بہت بڑا مناظر بنا گھومتا ہے اور اس کا نام ہے رجا بتاتا ہے یہ غیر مقلد۔ تو اس ریکارڈنگ کو پورا ضرور سنیں اور آگے شیئر کرتے تھے کریں۔ تو میں شکست لکھ دوں گا۔ جھوٹا کتنا اگر نہیں کرتے تھے تو شکست لکھ دو، انہوں نے کہا انہوں نے ہاں دعوت دیا نہیں نا کرتے تھے، سن سن سن، تو نے یہ کہا ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے تو میں شکست لکھ دوں گا، ٹھیک ہے؟ عبارت دکھا ابو حنیفہ سے۔ ہاں سن سن، پہلے اس پر اقرار کر۔ میں نے یہ یہ کہا ہے کہ اس ابو حنیفہ جو تو میں ثابت کر رہا ہوں کہ ابھی موضوع پر مارا جائے مسئلہ گا ان تو کی یہاں پر زبان رک سے جا، ثابت ہے، رک تو جا، رک زبان جا، سے رک جا۔ ثابت کرتا ابو حنیفہ رفع الیدین تو نہیں کرتے تھے سن دلیل سے۔ سن 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 سن، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو نے یہ کہا ہے اگر وہ نہیں دلیل کرتے پیش تھے، کر۔ اگر تو نے یہ دلیل دے دی، ثابت کر دیا، تو میں شکست اچھا، لکھ دوں گا۔ ہاں بالکل لکھ دوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں یہ ثابت کروں گا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں سے تیری جو شکست ہوگی پھر اب اس تو کے بعد تجھے راضی کر دیا، ابھی کی بات کیا، سانپ جیسا سر کبھی نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ابھی ہے؟ بات کیا امن بھاگ کیوں رہا؟ ابھی تو کہہ رہا تھا بات کر، اب میں تجھ سے ایک دلیل مانگ رہا ہوں تو لاچار ہو گیا۔ رک جا رک جا، اس پر بھی تجھے دلیل دوں گا انشاءاللہ کہ وہ اللہ رفع کے الیدین نہیں رسول صلی کرتے تھے۔ اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ البینۃ علی المدعی، مدعی ہوں کے ذمہ دلیل پیش کرنا۔ اس نے دعویٰ تو کر دیا، اب دلیل نہیں دے رہا، یا کہ ہاں، بغیر دلیل کے دعویٰ کیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ابھی اس وقت فی الوقت میرے کنے دلیل موجود نہیں ہے، تو لیکن میں ایک تجھے بتا دے دلیل کہ دوں گا پڑھا کہاں انشاءاللہ۔ سے تو نے، پڑھا اب کہاں سے؟ رک جا، دلیل بعد میں دینا، پڑھا اب کہاں سن سے؟ اب سن 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 سن، پڑھا میں کہاں جب سے؟ تک کون سی کتاب دلیل سے پڑھا سامنے کہ انہیں والے کو کیا کہ سن لے دلیل سن لے کرتے سن تھے؟ لے، زور مت کاٹ، تیری پکی شکست یہاں تو پکا شکست یہاں تیری ہو گئی ہے، ارے کیونکہ بھائی تو نے ابھی بہت تو بڑا کر دعویٰ گیا کر بھائی، دیا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور بہت کہہ رہا بڑھیا۔ ہے کہ نہیں کرتے تھے، تو مجھے دلیل دو، میں شکست لکھ دوں گا۔ میں الحمدللہ تجھے ابھی تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں تیرے نمبر پر، ٹھیک ہے؟ اور اس پر تجھے ابھی دلیل مت دیتا کرنا ہوں۔ میرے کو، ہاں ہاں رک رات جا، میں ضرور۔
नहीं, मैं तेरे नंबर पे कॉल करके इसको रिकॉर्ड करना है ना तेरी बात को, कि तूने शिकस्त तस्लीम की है कि नहीं की है। हाँ, रात में तेरे करना, नंबर रात पे, में। हाँ नहीं, तेरे नंबर पे कॉल करके इंशाल्लाह तुझे वो दलील भी दे दूंगा कि वो रफुल यदैन अब सामईन नहीं करते। हजरात, क्या होता है, हमने इसके पर्सनल नंबर पे कॉल जब की तो इसने कॉल काट दी कई बार और नहीं उठाई, और बार बार इसने कॉल काटी, ठीक है। लेकिन जो ये हमारे साहिल भाई हैं, इनके ज़रिए ये पकड़ा गया, क्योंकि साहिल भाई ने कॉल लगाई तो इसने उठा लिया, तो कॉल फ्रेंड्स पे हम भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाग रहा था लेकिन पकड़ा गया। अब यहाँ से आप आगे सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत वाज़े हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला। जिससे तुम पहले भागे हुए चल रहे हो उस पर बात कर लो। इमाम अबू हनीफा पर अज़ान करते थे कि नहीं? अब तो 1:30 बज गया, नमाज का भी टाइम होने वाला है। नमाज के का बाद टाइम होने वाला है या तू बहाना कर रहा है? चल पढ़ दे इबारत, इतने पढ़ दे, अभी 7-8 मिनट है, इबारत पढ़ दे। इबारत पढ़ दो, पढ़ दे हाँ। सबसे पहले अरबी में पढ़ना। दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, इसने कहा था कि अगर तूने एक भी दलील दे दी इस पर कि इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह रफुल यदैन नहीं करते थे तो मैं शिकस्त लिखकर दे दूंगा। इस पर अगर एक भी दलील दे दी तो मैं शिकस्त लिखकर दे दूंगा, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले इसको ये दलील देने जा रहा हूँ कि इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह रफुल यदैन नहीं करते थे। अरबी में पढ़ना। अब ये मेरे हाथ में किताब है, ठीक है, तेरे हाथ में PDF है, किताब है? खामोश रहे। इसका नाम है अल मोहल्ला, ठीक है। इस किताब का नाम है अल मोहल्ला। किसकी किताब है? ये किताब है इनके इब्ने हजम अल मुतवफ़्फ़ा 456 हिजरी, इनके घर का हवाला। वो अपनी किताब अल मोहल्ला रफुल यदैन मुस्तहब है, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 120 पर लिखते हैं मुतर्जिम प्रोफेसर गुलाम अहमद, और इमाम आजम भी कायल नहीं थे रफुल यदैन के सिवाय शुरू के तकबीर तहरीमा के। ये मैंने इनके घर का हवाला इनको दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ ये शिकस्त लिख कर दें। शिकस्त लिख कर दे, चल। हो गया? क्या हो गया? बोलना मत मेरे बीच में अब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैंने इससे ये कहा था कि तू अबू हनीफा रहिमहुल्लाह से मुझको दिखा दे कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह रफुल यदैन नहीं करते थे। ये बेचारा अहले हदीस की चौखट पर जूतियों में आकर इमाम इब्ने हज़म रहिमहुल्लाह से साबित करने की कोशिश कर रहा है कि अबू हनीफा रहिमहुल्लाह रफ़ यदैन नहीं करते थे। पहली बात तो ये है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं अल इस्नादुहु मिनद्दीन, कि दीन जो है वो सनद का नाम है। अब इसने कहा कि वो 5वीं 4.5 सदी हिजरी के इमाम है, इमाम इब्ने हज़म, और अबू हनीफा 80 सदी हिजरी के हैं, 80 हिजरी के हैं। अब ये 400 और 80 हिजरी के अंदर जो ये 400 साल का फासला आ रहा है, इमाम इब्ने हज़म से लेकर अबू हनीफा रहिमहुल्लाह तक सनद तेरा अहमद रजा पेश करेगा? अब खामोश रहे, ठीक है, अब खामोश रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कह रहा है कि उनका रफुल यदैन ना साबित करने के लिए अहले हदीसों की चौखट पर इसको आना पड़ा। इतना बड़ा जाहिल और घामड़ है। इस अहले हदीस के बच्चे ने साबित किया था और ये ऐलान किया था कि मैं शिकस्त लिख के दूंगा कि अगर कोई ये कह दे या कोई दलील ऐसी मिल जाए कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अगर ये कोई ये कह दे कि मेरा लफ्ज़ है, अगर कोई ये कहा था कि अगर इस पर एक दलील मिल जाए कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रफुल यदैन नहीं करते थे, तूने ये कहा था। में कैद क्या लगाई थी मैंने? क्या कैद लगाई थी? क्या कैद लगाई? बता, पूरी बात बता। तू बता, क्या कैद लगाई थी? कि अगर कोई ये कह दे, ये झूठ बोला तूने मेरी तरफ, अगर कोई ये कह दे, कोई ये कह दे, अबे
जाहिल है क्या? बिल्कुल। अगर कोई एक दलील भी मिल जाए, इमाम इब्ने हजम तूने खुद कहा 400 फला सदी हिजरी हाँ, के तो इमाम ये थे, अबू तेरे हनीफा घर 80 के हैं। हिजरी के सुन थे। सुन सुन सुन, अरे वो सबसे छोड़ तू पहले भाई। सुन। अरे मेरे बीच में मत बोल, मेरे बीच में मत बोल, खामोश रहे। कह रहा है कि अहले हदीसों की चौखट पर आना पड़ा। अरे अहले हदीसों को पहले हम उनके घर का आईना दिखाते हैं ताकि वो अपना मकरू चेहरा देख लें, अपना वो मकरू चेहरा देख ले। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो तू कह रहा था, तो तेरे घर से मैंने दलील दिखाई है। मुझे उनकी जरूरत नहीं है तेरे इब्ने हजम की, लेकिन मैंने तेरे घर से हवाला दिखाया ताकि तू ये मान जाए कि हाँ मेरे घर में हवाला मौजूद है और मैं बकवासात करता फिरता हूँ बगैर दलील। ठीक है, तो अब सबसे पहले तू ये कहा कि इब्ने हजम ने झूठ बोला है, ये कहा पहले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैंने इससे ये कहा कि इमाम इब्ने हजम 5वीं सदी हिजरी के इमाम है और अबू हनीफा 1ली सदी हिजरी के इमाम है। 80 सदी हिजरी और 400 फला सदी हिजरी में 400 साल का फासले की सनद कौन देगा? अहमद रजा। इसने कहा अब तू ये फतवा लगा कि इमाम इब्ने हजम रहीमहुल्लाह ने अबू हनीफा पर झूठ बोला है या फिर इस बात के लिए उसने झूठ बोला है। मैं इससे कहूंगा कि हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी अपनी एक किताब है तकरीब तहजीब और तहजीब तहजीब के अंदर जो रावियों पर उन्होंने कलाम किया है वो उनके दौर के है नहीं। कोई रावी 900 साल पहले का है, कोई रावी 800 साल पहले का, कोई रावी 700 साल पहले का। किसी रावी को कहते हैं वो कज़्ज़ाब है, किसी रावी को कहते हैं फला झूठा है, किसी रावी को कहते हैं ज़ईफ है। अब हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहीमहुल्लाह ने जब 900 साल का फासला पाया ही नहीं, हम इसलिए इब्ने हजर की बात मानते हैं क्योंकि वो जो रिवायत है जिस रावी पर उन्होंने कलाम किया है वो दूसरी किताबों से साबित है। तो जिस पर भी वो कलाम करते हैं उसकी सनद वो पेश करते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुहद्दिस से मिलती है। अब मैं तुझसे कह रहा हूँ हाफिज इब्ने हजम रहीमहुल्लाह ने जो ये बात कही है इसकी सनद कौन देगा? जैसा हाफिज इब्ने हजर की सनद हमको मिल जाती है रावी पे कलाम की, हालांकि उनके दौर पाया नहीं होता। इब्ने हजम से लेकर अबू हनीफा तक जरा मुझे सनद पेश करके दिखा कि कौन सी सनद है। नकल करने वाले पर कोई फतवा नहीं लगता। 1 मिनट है तेरे पास, फिर मैं नमाज पढ़ा रहा हूं। 1 मिनट बोल दे। हाँ, अब खामोश रहे। इसने जैसा कि कहा कि हमें उनसे तो सनद मिल जाती है, उन्होंने जो रावियों पर जरा की है, लेकिन इब्ने हजम की सनद कौन देगा? तो यानी कि ये मानता है कि इब्ने हजम जो है इसके, उसने इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बांधा है कि वो रफुल यदैन नहीं करते थे। ये तस्लीम कर रहा है कि इब्ने हजम ने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बांधा है। इसको पहले तस्लीम कर कि इब्ने हजम ने तू कह रहा है कि वो रफुल यदैन करते थे, इब्ने हजम कह रहे हैं कि नहीं करते थे, तो तू पहले ये बता ये तेरे घर के इमाम झूठ बोल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दुर्रियत बरेलवियत के अंदर कोई साबित नहीं कर सकता कि इमाम इब्ने हजम रहीमहुल्लाह ने कभी झूठ बोला हो। एक बात दूसरी बात ये इब्ने हजम झूठ बोल रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा है? अमन डरे मत, अमन डरे मत। हाफिज इब्ने हजम, मैं जाहिलों का सरदार है, तू जाहिल। इब्ने हजम डरे मत 1 मिनट रह गया। हाफिज इब्ने हजम रहीमहुल्लाह से लेकर अबू हनीफा तक मैंने इससे मुतालबा किया क्योंकि अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं अल इस्नादु मिन अद-दीन, सनद जो है वो दीन का नाम है। तू कह दे कि मैं मोहताज हो चुका हूँ, लाचार हो चुका हूँ, मुझसे एक भी सनद नहीं है अबू हनीफा तक इब्ने हजम से लेकर, तो फिर मैं आगे की बात करूँ कि इमाम इब्ने हजम ने झूठ बोला है सच बोला? तू कह दे कि मेरे पास सनद नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है। सुन मैं अल्लाह की कसम इब्ने हजम ने सनद नहीं लिखी, अभी कहूंगा कि उन्होंने यहाँ पर सही बात नहीं की। तू कह दे कि मेरे पास सनद नहीं है। खामोश रहे। अगर इब्ने हजम ने सनद नहीं लिखी है तो उन्होंने झूठ बोला है। मैंने तो इब्ने हजम की किताब से दिखा दिया, सनद पेश करना, मैंने इब्ने हजम को झूठा साबित कर दिया। अल्लाह के रसूल की हदीस अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई, ये बेचारा अमर इतना लाचार है कि दावे पर दलील नहीं दे रहा। सुन ये साबित करके इब्ने हजम ने झूठ बोला है, ये साबित कर पहले। हेलो, कहाँ गया? अबे कह रहा है कि इब्ने हजम से इमाम आजम तक सनद पेश कर। अबे तो तेरे इब्ने हजम ने अगर सनद नहीं लिखी है तो उसने अपनी तरफ से झूठ बोला है इब्ने हजम ने। कहाँ गया? चले गया। इसकी मौत आ जाएगी इस पर झूठ कह रहा है कि इब्ने हजम से सनद साबित कर। अगर इब्ने हजम ने वहां तक सनद नहीं लिखी है तो इसका मतलब इब्ने हजम ने झूठ बोला है या फिर तू झूठ बोल रहा है। साहिल भाई काय पर चले गया वो?
हाँ चले गए। और सुनो सुनो सुनो, अब ये बताओ साहिल भाई, ये मैंने अपने घर से हवाला दिया कि इसके घर से? इन्हीं के घर से दिया। इसके घर से दिया। अब ये कह रहा है कि इमाम आजम तक सनद पेश कर। चलो मैं अगर सनद पेश नहीं भी करता हूं तो तू ये बता कि इब्ने हजम की इस रिवायत को तू गलत कहता है, यानी इब्ने हजम ने इमाम आजम पर झूठ बांधा है ये लिखकर। हाँ, अब सुनो एक हवाला अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द से देता हूँ। ये एक मिनट, हाँ, ये किताब है इमाम हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह की मुअत्ता इमाम मोहम्मद, इसका रकम नंबर है 102। उन्होंने यहाँ नकल किया है कि इमाम मोहम्मद कहते हैं सुन्नत यह है कि आदमी अपनी नमाज में जब नीचे जाए और जब ऊपर उठे तो तकबीर कहे, और जब सजदे के लिए झुके तकबीर कहे, और जब दोबारा सजदा के लिए झुके फिर भी तकबीर कहे। लेकिन रफल यदैन नमाज में दोनों कानों तक इब्तिदा में सिर्फ एक मर्तबा करे, फिर बकिया नमाज में हाथ ना उठाए। और ये तमाम मसाइल इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हुम का मसलक है, और किसी ताईद में बहुत से आसार मौजूद हैं। यानी कि जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं इमाम हसन शैबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते हैं कि रफल यदैन सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त शुरू में करना ये इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है, और बकाया नमाज में नहीं। अब ये मुअत्ता इमाम मोहम्मद से भी साबित हुआ, और सबसे पहला हवाला इसके घर से दिया मैंने। साहिल भाई देख रहे हैं ये वहाबी कितने बड़े कज़्ज़ाब होते हैं। ये रजा गैर मुकल्लिद वहाबियों का इतना बड़ा मुनाजिर बना घूमता है, इसने अपने इब्ने हजम को झूठा साबित किया, और इसके पास एक भी दलील नहीं है कि इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह रफल यदैन करते थे। तो अब ये बताओ इसकी शिकस्त हुई कि नहीं हुई? हुई? हाँ साहिल भाई, इसकी तुम्हारे सामने पिछली बार इसने कहा था शिकस्त लिख के दूंगा, मैंने एक इसके घर से दलील दी, एक इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द से दलील दी। अब ये बताओ इसकी शिकस्त हुई कि नहीं हुई? हुई ना? जी जी। हाँ, तो ये ऐसे कज़्ज़ाब होते हैं, और ये भाग गए दो फोन काट के।